شادی والے دن جب میری بیوی دلہن کے روپ میں شادی کے ہال میں آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اپنے اوپر نہ جانے کتنے دوپٹے ڈال کر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت زیادہ کوفت محسوس ہو رہی تھی اور برا بھی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ سارے مہمان عجیب و غریب نظروں سے ہم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دلہن تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شادی میں کوئی ڈاکو داخل ہو گئی ہے جو اتنے سارے پردے اپنے اوپر ڈال کر آئی ہے۔ ہر کوئی اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن اس کی ماں سامنے کھڑی تھی اس کی ڈھال بن کر اور بول رہی تھی کہ میری بیٹی بہت زیادہ پردہ دار ہے، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی سوائے اپنے دولہے کے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ان لوگوں کی سوچ پر مجھے حیرت ہوئی کہ شادی کا دن تھا، ہر کوئی دلہن دیکھنا چاہتا ہے۔ شادی ہال میں اتنے زیادہ مرد بھی نہیں تھے جتنے دوپٹے وہ اپنے اوپر ڈال کر آئی تھی۔ میں نے سنا تھا میری ہونے والی بیوی بہت نیک اور پردے دار ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ اچھی خاصی پردہ دار لڑکیوں کو بھی میں نے شادی کے دن دیکھا ہے۔ وہ مکمل ہو کر بہت شوق سے فوٹو سیشن میں لگی ہوتی ہیں۔ میں بھی اپنی بیوی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دوپٹے ہٹا دیں، لیکن گھونگھٹ کے نیچے سے وہ انکار میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میری شادی تھی اور میرا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ شادی کی نئی شروعات میرے لیے بہت عجیب و غریب ثابت ہوئی۔ میری شادی کا سارا مزہ کرکرا ہو کر رہ گیا۔ ہر رشتہ دار تانے کس رہا تھا۔ ہم لوگ بھی بہت زیادہ ماڈرن نہیں تھے، عام سے لوگ تھے، لیکن شادی تو اس طرح نہیں ہوتی۔ سارے مہمان دلہن کو دیکھنا چاہتے تھے اور وہاں پر زیادہ عورتیں تھیں، کون سا اتنے زیادہ مرد تھے۔ شادی ہال سے جب ہم دلہن کو رخصت کر کے گھر گئے تب تک میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں دلہن کو دیکھنے کی کسی قسم کی کوئی چاہ باقی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شادی کے دن میرا بہت زیادہ مذاق بنایا جا چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ میری دلہن کتنی پیاری ہے۔ میں نے خود اب تک نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ وہ بہت پیاری ہے۔ میری پھپھو اور چاچیاں اور ان کی بیٹیاں سب میری دلہن کو دیکھنے کے خواہش مند تھے، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا تھا جس کا مجھے بہت افسوس تھا۔ گھر آ کر چھوٹی موٹی رسموں کے بعد سب مہمان چلے گئے۔ میں گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ مہمان یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ کی دلہن تو ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی، شاید اسے یہ خوف ہے کہ ہم اسے نظر لگا دیں گے۔ میری ماں کو بھی بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ خیر انہوں نے میری دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا اور مجھے کہا دلہن کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس کے پاس، جتنی بے عزتی اس نے ہماری کروانی تھی کروا لی۔ میرا دل کھٹا ہو گیا ہے اب اس لڑکی سے۔ میں نے شدید غصے کا رد عمل کیا، اپنی والدہ سے کہا۔ میری والدہ نے بھی مجھے بہت سمجھا بجھا کر کمرے میں بھیجا۔ میں بہت زیادہ موڈ خراب میں کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دلہن کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو جائے نماز پر اس افسرا کو دیکھ کر مجھے ساری دنیا بھول گئی۔ میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اوپر سے وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اپنے گورے اور خوبصورت چہرے کے گرد اوڑھ کر نماز میں دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی حور یا پری اتر آئی ہے۔ کچھ دیر پہلے والا سارا غصہ میں بھول چکا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا۔ اس نے شادی والا لباس ہی پہنا تھا مگر میک اپ صاف کر لیا تھا، جو کہ شاید وضو کرنے کی وجہ سے اس نے مٹا دیا تھا۔ اب جب وہ بنا میک اپ کے اتنی حسین تھی تو میک اپ کے ساتھ کیسی لگ رہی ہوگی۔ وہ دعا میں اس قدر مشغول تھی کہ اس سے میری آمد کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ جب تک اس نے میری طرف دیکھا وہ چونک گئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے اس قدر معصومانہ سوال کیا تھا کہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت تمہارے کمرے میں تمہارے شوہر کے علاوہ اور کون آ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس لیے پوچھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ اس نے نظریں جھکا دی اور مجھ سے کہا میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہوں۔ میں نے سوچا آپ کے آنے سے پہلے عشاء پڑھ لوں۔ پھر کہنے لگی میں نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا، میں ویسے پھر سے تیار ہو جاتی ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ نے اس روپ میں مجھے نہیں دیکھا جس میں دیکھنے کی شاید آپ کو خواہش تھی۔
मैं इसे मना करना चाहता था, इसे कहना चाहता था कि इसे श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फ़ौरन ही अपना मेकअप बॉक्स उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो मेकअप के साथ आई तो इसके हुस्न को चार चाँद लग गए थे। इसने तमाम ज़ेवरात वापस पहन लिए जो मैंने इसकी शादी पर दिए थे। मैं जो बात कुछ देर पहले बहुत गुस्से से पूछने वाला था, अब मैं प्यार से पूछ रहा था। इसने मेरे साथ तस्वीरें क्यों नहीं बनवाई? इसने कहा वो कैमरा में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखें। मेरा सारा हुस्न, सारी खूबसूरती सिर्फ़ आपके लिए है। मैं क्यों दूसरे लोगों को अपना हुस्न दिखाती फिरूँ? फिर इसने कहा, आप मुझसे नाराज़ हैं। चलिए ठीक है, हम मोबाइल में तस्वीरें बना लेते हैं। फिर इसने मोबाइल में ही मेरे साथ शादी के जोड़े में तस्वीरें बनवा ली। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत अच्छी लड़की है, अपने शौहर को राज़ी करना अच्छे तरीके से जानती है। मेरी बीवी को दूसरे लोग देखें ये तो मुझे भी पसंद नहीं था। खैर मैंने इसे मज़ीद कुछ नहीं कहा। हम तो हमने ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया। इसने मुझे बहुत खुशी दी थी। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़माने को खुश करने वाली लड़की नहीं है। वो सिर्फ़ शौहर को खुश करना चाहती है। मैं दिन ब दिन इसकी बातों से मुतासिर होता जा रहा था। मैंने महसूस किया था कि इसका हँसना, बोलना, हर अंदाज़ सिर्फ़ मेरे लिए था। इसे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि शौहर को कैसे राज़ी करना है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आगे किस किस्म की क़यामत मेरी मुंतज़िर है। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ मेरी जान का अज़ाब बनने वाला है। मेरे कुछ दोस्त काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे कि कहीं दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत ज़िद की तो मुझे जाना पड़ा। मेरे जाने का सुनकर मेरी बीवी उदास हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, एक रात ही की तो बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपनी बीवी को ये नहीं बताया कि सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त काफ़ी दिन के लिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एक दिन का सुनकर ही वो इतना उदास हो गई है। ये पहली बार था जब मैं बीवी से दूर जा रहा था। हम सुबह के निकले और शाम को वहाँ पहुँच गए। ये एक बहुत बड़ी और हवेली थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था ये कैसी जगह है, यहाँ किस किस्म के लोगों का आना जाना है और यहाँ पर कैसा काम होता है। और जिस किस्म की औरतें यहाँ पर मौजूद थी, इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कौन सा काम करती हैं। इन औरतों को देखकर मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत और भर आई, क्योंकि मुझे अपनी बीवी याद आ रही थी। इसका पर्दा करना, इसकी शर्म और हया, इसकी हर अदा मुझे इस कदर मुतासिर किया था कि इसके सामने मुझे दुनिया की हर औरत बेमोल लग रही थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पर शराब और कबाब दोनों का बंदोबस्त था। महफ़िल सजी हुई थी। मैं भी महफ़िल में बैठ गया। अचानक एक रकासा रक़्स करते हुए मेरे सामने आई, लेकिन इसे देखकर मुझे लगा मैं अगला साँस नहीं ले पाऊँगा। वो जालीदार नकाब में थी, लेकिन मेरी सामने वो 7 पर्दों में भी होती तो मैं इसे पहचान जाता। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। इसने रक़्स करना शुरू किया तो इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो फ़ौरन वहाँ से भाग गई। सब लोग परेशान हो गए। इसकी जगह दूसरी लड़कियों को लाया गया। इसने रक़्स करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की जो मेरी बीवी थी वो कहीं गायब हो चुकी थी। मुझे अपनी बसीरत पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंज़र मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा है वो सच था, ये कोई धोखा था, या मेरा दिल कह रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूँ। लेकिन मैं बेबस था। इतने सारे हजूम को नहीं बता सकता था कि जो नाच रही है वो मेरी बीवी थी। मैंने वहाँ पर मौजूद एक ख़ास आदमी से इसका पूछा तो इसने कहा, वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, इसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर वो तुम्हें मतलूब है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे लाने पड़ेंगे। इस आदमी की बात सुनकर मैं तैश में आ गया। मैंने आओ देखा ना ताओ उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे रोका और कहा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है? मैं इनसे नहीं कह सकता था कि मैं अपनी बीवी को इस हालत में इतनी बुरी जगह पर देखा है। मेरे दोस्तों ने जब मेरी हालत देखी तो मुझे वापस घर ले आए। मैं तो जैसे बर्बाद हो चुका था। मुझे पता था मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस हवेली में थी। सारा रास्ता यही सोचता रहा, मेरी बीवी कितनी ड्रामेबाज निकली। जब मेरी इससे शादी हुई थी, किस तरह से वो अदाएँ दिखाकर मुझे खुश किया करती थी।
मैं सच समझ नहीं पाया था कि ये अदाएँ एक शरीफ औरत की अदाएँ नहीं थीं। शादी की पहली रात इसका नमाज़ पढ़ना, शादी के दिन इसका पर्दा, सब कुछ ढोंग था। जब एक मुनाफ़िक इंसान की अपनी असलियत छुपाना पड़ती है, तो वो ऐसे ही करता है। मैं गुस्से से घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से शिकवा करने ही वाला था कि अचानक से रुक गया, क्योंकि मेरी माँ के साथ टीवी लॉन में मेरी बीवी बैठी थी। वो दोनों टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। मैं अपनी बीवी को अपने घर में देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि अभी तो मैं इसे हवेली में देख कर आया था। मुझसे पहले इसका घर पहुंचना नामुमकिन था। मैं फ़ौरन से आगे बढ़ा, इसे बालों से पकड़कर सवाल करने लगा कि बताओ, इस हवेली में तुम क्या करने गई थी? तुम एक बदकिरदार लड़की हो। मैंने उसे वहीं पर जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे इतना मारा कि मुझे लगा चंद सांसें ही इसके अंदर रह गई हैं। वो रो रही थी और अपना कसूर पूछ रही थी। मैंने अपनी अम्मा से भी शिकवा किया कि मेरी शादी इस बदकिरदार लड़की से क्यों करवाई। मेरी बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। मेरी अम्मा ने मुझसे कहा, क्यों वहशी जानवरों की तरह इस बेचारी पर टूट पड़े हो? इसका क्या कसूर है? मैंने चुन कर इस लड़की को तुम्हारे लिए मुंतखब किया था। कल तक तो तुम इससे बहुत खुश थे। आज क्या हो गया है? मैंने जब सारी बात अपनी वालदा के गोशगुजार की, तो उन्होंने हैरत से मुझे देखकर कहा, जब से तुम गए हो ये लड़की तो सारा दिन मेरे साथ गुजार रही है। मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे अपनी वालदा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से इसे वहाँ देखा था, मगर मेरी वालदा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मेरी माँ क्यों मुझसे झूठ बोलेगी? मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मेरा सर फट रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ऊंची आवाज़ में रोए जा रही थी। ये सारा माजरा क्या था? मेरी समझ से बाहर था। मेरी माँ ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने अपनी बीवी से बातचीत बंद कर दी थी। मेरी बीवी रोते हुए मेरी तरफ देखती रहती थी। अगले दिन तस्दीक के लिए इसी जगह अपने दोस्त के साथ गया। मैंने अपने दोस्त को सारा माजरा बता दिया। मेरा दोस्त भी सुनकर हैरान हुआ। हम इस हवेली में पहुंचे और बड़ी राजदारी के साथ हमने इस इंसान का पता करवाया जो इस लड़की का दलाल था, जो इसे हवेली में लेकर आया था। मालूम हुआ कि लोग गांव के रहाइश में थे और मेरा दोस्त फौरन इस दलाल के पास गए। मेरे दोस्त ने इसे कहा कि वो लड़की कहाँ है, हम इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करेंगे। मेरा दोस्त ऐसा कहता हुआ मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। मेरे दिल पर जैसे खंजर चल रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इस लड़की को सामने लाने के लिए इस दलाल ने कहा, वो लड़की तो मैं कोठे से लाया था और वहाँ पर ही रहती है। मेरी भी रहाइश वहीं है, लेकिन मेरा घर यहाँ पर है। मैं बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। अगर आप मुझे 2000 दें तो मैं आपको इसके पास लेकर जा सकता हूँ। बाकी की डील आप इसकी नायिका से कर लेना। मेरे दोस्त ने इसे 2000 तो दिए और कहने लगा, चलें, मैं आपको उस जगह पर लेकर जाता हूँ। वो शख्स हमें इस कोठे पर ले गया। मैं इस लड़की को देखकर हैरान और परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो हूबहू मेरी बीवी थी। वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई? मैंने तो इसको इतना मारा था। वो तो सफ़र करने के लायक ही नहीं। इसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान थे। अब सारे निशान अचानक कैसे साफ़ हो गए? मैं हैरानगी से इसे देख रहा था। वो चौंक कर खड़ी हुई और मेरे कदमों में गिर गई। इसने मुझे कहा, खुदा के लिए मेरी बहन को तलाक मत देना, इसे घर से मत निकालना। इसका कोई कसूर नहीं है। वो वाकई बहुत नेक और परहेजगार लड़की है। मैं ही बुरी हूँ। मैं इसकी बात सुनकर हैरत से पूछने लगा, कौन सी बहन और कैसी बहन? इस लड़की ने बताया, आपकी बीवी मेरी जुड़वा बहन है। हम दोनों हम शक्ल हैं। शक्लो सूरत, कद, रंगत और जिसामत बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों के वजूद में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। अक्सर जुड़वा बहनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो पहचानी नहीं जाती। हम दोनों भी ऐसे ही हैं। मैंने हैरत से देख रहा था। वो खड़ी होगी। इसने कहा, आप सुकून से बैठ जाए, मैं आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। इसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, सो मैं आराम से बैठ गया। इसने कहानी सुनाना शुरू की और फिर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। इसने कहा था, हम दोनों बहनों का ताल्लुक एक बहुत ही शरीफ घराने से था। हमारे वालिद इमाम मस्जिद थे। हमारी माँ भी दर्स दिया करती थी। बचपन से ही हम दोनों बहनें बला की खूबसूरत थी, लेकिन 12 साल की उम्र में किसी ने मुझे अगवा कर लिया। मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गई।
मेरे वालिद ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं इन्हें ना मिली। जिस इंसान ने मुझे अगवा किया था उसने मुझे इस कोठे पर भेज दिया था। यहाँ पर मेरे साथ वही सलूक हुआ जो अगवा की हुई लड़कियों के साथ होता है। मैं तो 12 साल की बच्ची थी। 12 साल की उम्र में भी मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। मेरे बड़े होने का किसी ने भी इंतज़ार नहीं किया। इतनी सी छोटी उम्र में मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर मैं मजबूर हो गई ये काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भूखा प्यासा रख कर मुझ पर बहुत जुल्म किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके रंग में रंगती चली गई। फिर कई साल बाद अचानक एक रोज़ बाजार में मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उसने मुझे पहचान लिया, मुझे गले लगाया और कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने इस औरत को नहीं पहचाना। मुझे कुछ याद नहीं था। इस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। वो मेरी माँ थी। इसने मुझे देखकर सिर्फ इसलिए पहचान लिया था क्योंकि मेरी और मेरी बहन की सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। फिर इसने मुझे मेरी बहन दिखाई। वो भी इसी बाजार में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। मुझे बहुत कुछ याद आ गया था। मैं अपनी माँ बहन को गले लगाया। हम तीनों काफ़ी देर रोते रहे। मेरी अम्मा ने मुझे बताया, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, हम यहाँ इसकी शॉपिंग करने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैं इतनी गंदी हो चुकी हूँ कि अब कोई शरीफ घराने वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की रूह तक लर्ज़ गई। इसने कहा, हमने तुम्हारी याद में इतने आंसू बहाए हैं कि अब आंखों से हर आंसू ही ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मुझे मालूम था वो जो तुम्हें उठाकर ले गए थे वो तुम्हें ऐसी गंदी जगह पर ले गए होंगे। मेरी रातों की नींदें तुम्हारे जाने के बाद हराम हो गई थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, मैंने खुद को संभाल लिया। बस मैं यही दुआ करती रही कि काश तुम मर जाओ, मगर ऐसे हाथों में ना लग जाओ। लेकिन आज ये सुनकर मेरा दिल फट रहा है कि तुम इस हाल में पहुंच गई हो जिसका मुझे खौफ था। इसके बाद मैं अपनी बहन की शादी में बुर्का पहन कर आई थी। मैंने तो आपको वहाँ पर देखा था। शादी वाले दिन मेरी बहन खुद को 7 पर्दों में छुपा कर बैठी थी। इसकी वजह यही थी कि कोई इसे मेरी तरह का ना समझ ले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। हम लोगों को यही खौफ था कि कहीं इसकी शादी में कोई ऐसा इंसान मौजूद ना हो जिसने मुझे कोठे पर देखा हो और फिर वो आपसे ये कहे कि आपकी बीवी एक तवाइफ है। आज मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही है। लेकिन इसने मुझसे कहा है कि कभी हमारे पास ना आना। तुम्हारी इज़्ज़त दागदार हो गई है। अगर ये बात खुल गई तो फिर तुम्हारी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इस सब में ना तुम्हारा कसूर है ना मेरा और ना तुम्हारी बहन का। लेकिन फिर भी ज़माना हमें जीते जी मार देगा। वो लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की और उसे कहा, मेरी बीवी को दिखाओ। तो मेरी बीवी मेरी माँ के साथ बैठी हुई थी। मैं घर आया तो मेरे पास अल्फाज नहीं थी। मैं किन अल्फाज में अपनी बीवी से माफ़ी मांगूँ? वो बिल्कुल बेकसूर थी। इसकी बहन भी बिल्कुल मासूम थी। इसकी बहन को तो सिर्फ 12 साल की उम्र में अगवा कर लिया गया था। इस बेचारी का क्या कसूर था? वो तो एक दलदल में गिर चुकी थी। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, लेकिन अम्मा ने कहा, तुम्हें माफ़ी ना तुम्हारी बीवी देगी और ना मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। एक शक की बुनियाद पर तुमने इस बेचारी को मार मार कर हलकान कर दिया। किसी पर जुल्म ढाने से पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर मैं इसके साथ ना होती तब शक की गुंजाइश थी। लेकिन जब तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी बीवी सारा दिन मेरे साथ थी, तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने अब तुम्हारी बहन से मिलकर आया हूँ। मेरा भी कसूर नहीं था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर मेरी बीवी और मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया था। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बीवी की जुड़वा बहन को भी इस जगह से आज़ादी दिलवा दी और इसकी माँ के साथ इसे दूसरे शहर भेज दिया ताकि कोई इसे पहचान ना सके। अपनी बीवी को हर महीने इसकी माँ और बहन से मिलवाने के लिए ले जाता हूँ। अब आप बताइए, मैंने अपनी बीवी और इसकी बहन के साथ ठीक किया या गलत? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा।